Hey guys, what's up? So in this lesson we'll discuss the Union Budget Part 1 2017 and everything a layperson and a government exam aspirant need to know. जो भी आपको जानना है वो सब मैं बता दूंगा इस lesson में. So let's get started. So we start with the problems of UPA 2. So first of all you need to know that to keep the current budget in perspective, that is the 2013-14 was the last budget of UPA 2 government, and it was presented in the context of slowing down global growth, and India's growth projection at the time was kept at 5.5% by RBI. Although the methodology has been changed, so the projected the growth rate between both the budgets, that is 2013-14 and this government, has been that the potential growth rate is 8%. But at that time there were a lot of problems like policy paralysis there because of fear of CBI, CVC, CAG. There was a crisis of a legitimacy of a government because it was hit by a lot of scams, 2G, coal, etc. Then inflation with a lot of food, crude oil imported because of it, like the prices were sky high, pulses, oil seeds, everything was sky high. The high fiscal deficit, high current account deficit, and there was attempt to find correct level of government expenditure, and there was obviously global slowdown going on. Okay, so basically the approach of UPA government, it was based on legislatively backed rights paradigm, that is Rawls theory of social justice. So what they did was basically they dole out a lot of subsidies, etc., and that is why government role in social sector had increased significantly. Since that increases, so leakage and pilferages also increases from public distribution system. Okay. So in 2014, when Modi campaign started, so this crisis of legitimacy and policy paralysis, and they were taken care of through the slogans like minimum government, maximum governance, अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास. So basically जो न्यू मिडिल क्लास है उनकी एस्पिरेशंस और यूथ जो हैं, plus there was a lot of personal charisma. That is why this was the first majority of a single party in Lok Sabha after 30 years. ठीक है. Now this budget was presented on 1st February 2017, and ये चौथा बजट है फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का. सो इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड. जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो है कि राइजिंग एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट्स, वॉलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमी, एक्सेट्रा. सो first of all it was the new things are it was advanced to 1st February, and to avoid a vote on account plus pass a single appropriation bill for 2017-18. उससे क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही सारा जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उसको सारा बजट मिल जाएगा, सो दैट दे कैन ऑपरेशनलाइज ऑल दी स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग न्यू स्कीम्स राइट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे चालू होगा. प्लस जितना भी टाइम अभी बचा है, दे विल बी एबल टू फुली यूटिलाइज द अवेलेबल वर्किंग सीजन बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, एंड इंडियन इकोनॉमी इज ऑफन नोन एज अ गैम्बल इन मानसून, सो इट इज़ अ गुड थिंग. दूसरी चीज़ है कि रेलवे बजट मर्जर हो चुका है, पहली बार हुआ है जनरल बजट के इतिहास में. ये चालू कैसे हुआ था, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, बट इट इज़ अ कॉलोनियल प्रैक्टिस जो 1924 से चली आ रही थी, उसको हमने हटा दिया है. अब उसमें क्या होगा कि हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टिंग की बात करते हैं कि रेलवेज, हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो. तो जो ये स्टेप होगा रेलवेज का साथ में लाने का सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इनसे रेलवेज, हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज को साथ में आप प्लान कर सकते हो. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेलवेज की फंक्शनल ऑटोनॉमी हटा दी, वो है, बट उसका बजट हटा दिया. The budget is very careful in specifying the lot of stuff, Bibek Debra report थी कि railways should not be privatized under any circumstances. ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ बजट अलग किया है और कोई भी चेंज नहीं किया है. ठीक है. थर्डली एक प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन है उसको ख़त्म कर दिया. अगेन इसमें क्या होगा कि होलिस्टिक व्यू मिलेगा कि क्या टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है. फाइनली 5 ईयर प्लान बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो 12th 5 ईयर प्लान जो था 2017 के साथ ख़त्म हो रहा है. सो दिस विल फैसिलिटेट ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडरलाइंग थीम ऑफ द बजट इज़ बेसिकली गुड गवर्नेंस, देन इश्यूज़ लाइक इन्फ्लेशन, करप्शन इन डे टू डे ट्रांजेक्शन, क्रोनिक कैपिटलिज्म, इनको काफ़ी स्ट्रांगली सजेस्ट किया गया है. सो they are saying that there has been a transformative shift in the way our country is governed. So from a discretionary administration, we are moving to a policy and system based administration, and from favoritism we are moving to transparency and objectivity in decision making, and from blanket and loose entitlements we are moving towards targeted delivery. पहले क्या होता था कि ऐसे ही हाँ भाई मिल जाएगी सब्सिडी, हाँ ये मिल जाएगा. अब हम टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं, लोगों के घर में घुस घुस के, बैंक अकाउंट में घुस घुस के पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं. एंड फ्रॉम एन इनफॉर्मल इकोनॉमी जहाँ पे मोर देन 90% पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर फॉर्मल वन. अब बजट बोलता है कि यार 3 मेजर चैलेंजेस हैं हमारे सामने जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसके लिए. फर्स्टली जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस होता है यूएस फेडरल रिजर्व का,
उससे क्या होगा कि जैसे ही वो पॉलिसी रेट अपनी बढ़ाते हैं, ठीक है, दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट्स मोर देन वंस इन 2017, तो उससे क्या होगा कि लोग अपना पैसा यूएसए में ही रखेंगे ना, फिर वो बाहर नहीं लेके जाएंगे। और अगर बाहर होगा भी, जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया एक्सेप्ट्रा में होगा, तो वहाँ से हायर आउटफ्लो हो जाएगा और वो वापस यूएसए में चला जाएगा। तो ये बहुत ही मेजर इशू है। दूसरा जो मेजर इशू है वो है अनसर्टेनिटी अराउंड कमोडिटी प्राइसेस, स्पेशली दैट ऑफ क्रूड ऑयल। उसमें बहुत सारे लाइक इट विल बी लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस फॉर द फिजिकल सिचुएशंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। लेकिन ऐसा माना जाता है ऑप्टिमिस्टिकली कि ऑयल प्राइस अगर बढ़ भी गए तो शेल गैस से और अदर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उससे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑयल अब 30-40 साल का ही है, मतलब उसके बाद देर आर लॉट ऑफ सोलर एनर्जी एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी चीज़ है इंक्रीजिंग रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। लोग लोकलाइजेशन पे ज़्यादा जा रहे हैं, आइसोलेशनिज्म में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, नेटिविज्म में ज़्यादा जा रहे हैं। खास करके अगर आपने यूएसए का एग्जांपल देखा होगा, मुस्लिम इमिग्रेशन हैज़ बीन बैंड फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज़, H1B वीज़ा इशू हो रहा है, इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो ये ना केवल पीपल पे हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज पे भी हो रहा है, ठीक है। So according to the budget, like India is a bright spot in the world economic landscape. Now India's macroeconomic stability, it continues to be the foundation of economic success. बेसिकली जो हमारा CPI इन्फ्लेशन है वो 6% से जुलाई 2016 से घट करके 3.4% हो चुका है दिसंबर 2016 में, और जो RBI की मैंडेटेड रेंज है 2 to 6% उसी में एक्सपेक्टेड है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी, so basically India's current account deficit declined from 1% of GDP last year and now it is like 0.3% of GDP in the first half of 2016-17. हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है that has also reached 361 billion US dollars, लेकिन चाइना का हमारा से 10 times ज़्यादा है, it is roughly around 2.5 to 3 trillion dollars, ठीक है, and it will cover like 12 months worth of import bill. Now budget has also continued on the steady path of fiscal consolidation, लाइक बट वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो इकोनॉमी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन वेदरिंग अ नंबर ऑफ शॉक्स, लाइक देर इज लॉट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ FCNR डिपॉजिट्स। वॉलेटिलिटी US इलेक्शन की काफ़ी अलग चल रही है, उनके जो फेड बैंक है उसकी रेट हाइक अलग चल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू IMF जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन 2017 अमंग द मेजर इकोनॉमीज, ठीक है। सो बेसिकली lot of focus goes on the implementation of GST also. So first, and the budget also seeks to justify demonetization of high denomination bank notes. So basically they are saying that during last 2 years lot of tax evasion have happened, black money, parallel economy, terrorism, corruption, crony capitalism, ठीक है, काउंटरफीट करेंसी, ये सब कुछ हुआ है। तो इसको कुछ ना कुछ तो करना ही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट द इम्पैक्ट विल बी देयर। और उन्होंने एक कोट यूज़ करी है गांधी जी की, राइट कॉज नेवर फेल्स, सो दैट इज़ व्हाट दे हैव यूज्ड फॉर डिमोनेटाइजेशन। तो ओवरऑल जो अप्रोच है बजट की वो है कि स्पेंड मोर मनी इन रूरल एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन, बट मेंटेन द बेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे डील्स विद ऑल दिस इन डिटेल, plus it analyzes India's past history of never defaulting on its commitment on repayment of loans and sovereign debt, even in 1991 when we were like almost gone because of lot of there was hardly any forex reserve left. एजेंडा क्या है? एजेंडा है ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। देयर आर 3 एजेंडाज, TEC। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्म द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीपल। आप समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्म इट। एनर्जाइज का मतलब है एनर्जाइज वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली द यूथ, द वल्नरेबल सेक्शन, एंड इनेबल देम टू अनलीश देयर रियल पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट इज क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया का मतलब है क्लीन द कंट्री फ्रॉम इवल्स ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन, तो ये 3 एजेंडा है बजट के। नाउ लेट्स सी, सो दे आर फोकसिंग ऑन 10 डिस्टिंक्ट थीम्स। अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स, जिनके लिए हमने कमिटमेंट दिया है कि नेक्स्ट 5 साल में 2022 तक हम उनकी इनकम डबल करेंगे। रूरल पॉपुलेशन, सो दैट वी कैन प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूथ, so that we energize them through education, skills and jobs. चौथा is poor and the underprivileged, so that we can strengthen the systems of social security, health care, affordable housing. पांचवा है infrastructure, so that efficiency, productivity, quality of life etc. हम improve कर सकें। छठा है financial sector, so that growth, stability etc. can come through stronger institutions. Seventh is digital economy, फॉर स्पीड, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता ना यार।
Then eighth is public service. Obviously goes without saying, everything has to be done with public service. Government is there for public service. More governance, effective service delivery through people's participation. लोगों का participation बहुत important है. Then prudent fiscal management, so that to we ensure optimal deployment of resources and preserve fiscal stability. Then you have tax administration. Basically you should not unknowingly harm the honest person, honor the honest person. ठीक है. So total allocation for rural, agriculture and allied sector is 1,87,000 crore rupees, and it is 24% higher than a year ago. ठीक है. Just remember that figure, 1.87 lakh crore. So let's get started with farmers. So basically पहला कमिटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बेसिकली जो चालू हुआ था बजट, इंडियन फार्मर हैज वंस अगेन शोन हिज कमिटमेंट एंड रेजिलियंस इन द करंट ईयर. द टोटल एरिया सोन अंडर खरीफ एंड रबी सीजन्स आर हायर देन द प्रीवियस ईयर. ये क्यों बोला गया है? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के कारण ये बोला जा रहा था कि फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और एडवर्स इम्पैक्ट होगा सोइंग ड्यूरिंग रबी सीजन. रबी आपको पता होगा नवंबर में ही चालू होती है बुआई, अक्टूबर नवंबर में चालू होती है और मार्च में काट लेते हैं वीट की जो बुआई होती है. नाउ डिसरप्शन ऑफ रबी सोइंग हैज़ लेड टू अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 8 नवंबर. बट एज दे आर सेइंग कि इट हैज़ बीन हायर देन द प्रीवियस ईयर, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है. नाउ बजट ऑल्सो सेड कि वी विल कमिट टू डबल द इनकम बाय 2022. तो काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, खास करके इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं यूपी पंजाब में, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो लॉट ऑफ सुसाइड्स हैपन इन विदर्भा, महाराष्ट्र. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड. लाइक इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ नेशन. सो दैट इज़ वाई द कमिटमेंट हैज़ बीन देयर. ठीक है. So basically you have to build a lot of perception among farmers कि the government is pro farmer and we are doing actively something for you. Then private consumption comes from rural areas. ठीक है. तो वो काफ़ी उस पर फोकस किया गया है, काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करी गई है. बिकॉज इकोनॉमिक सेंस भी बनता है ना, ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं इंडिया में. तो 2014-15 में जो इन्फ्लेशन हुआ और एल नीनो जो मानसून को इम्पैक्ट किया, तो एग्रीकल्चर 15-16 में थोड़ा ढीला रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके. देन पूरा का पूरा एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फार्मिंग ऑपरेशन को कवर करने की बात करी गई है. इसका मतलब होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस तक, फ्रॉम प्री सोइंग टाइम. प्री सोइंग का मतलब है कि आपको लोन मिल रहा है कि नहीं, अच्छा फसल मिल रही है कि नहीं, सीड्स मिल रहे हैं कि नहीं, खाद मिल रहा है कि नहीं, देन यू आर गेटिंग पेस्टिसाइड्स और एक्सेट्रा. So the endeavor is to cover the entire spectrum of farming operations from pre-sowing inputs to post-harvest marketing. Okay. So then उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब क्रेडिट ऑफ टेक एंड कोऑपरेटिव्स वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लॉन्च करने पड़ेंगे. फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफ टेक मतलब 10 लाख करोड़ विल बी देयर रिकॉर्ड टारगेट, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ सके, रीजनल इनइक्वालिटी को कैटर किया जा सके. नाउ इट इज़ एन 11% इंक्रीज फ्रॉम द 2016 एंड 17 टारगेट. ठीक है. अगर ये ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया, सो इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट एजेंट ऑफ इम्प्रूविंग द इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली इन द अंडर सर्व्ड एरियाज लाइक ईस्टर्न इंडिया, वेयर लाइक अभी तक ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना आया नहीं है, एंड द ट्रबल्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देन सेकंड इज कोऑपरेटिव्स, तो लेवरेज द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट. समझ रहे हो. नाउ इट सीक्स टू अचीव कंप्यूटराइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 63,000 फंक्शनल PSEs विद कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, सो दैट कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन बढ़ाया जा सके. देन यू हैव फसल बीमा योजना, ताकि फार्मर्स फील सिक्योर्ड अगेंस्ट द नेचुरल कैलामिटीज. So it's targeted to increase from 30% of the cropped area to 40% to 50% in 2018 and 19. ठीक है. Now the total net cropped area of India is 145 million hectares. So a sum of 9,000 crore rupees it has been provided, but it is significantly lower than the 13,000 crore required. So थोड़ा सा deficit है उसमें. The budget also covers post harvest stage, so that is also there. Then e-NAM project होता है National Agricultural Market. ठीक है. सो इट इज़ टू बी एक्सपेंडेड टू 585 APMCs फॉर करंट फ्रॉम 250 currently, and the government urging them to denotify perishables from APMC. That is also very important. Now, so we will continue the discussion of farmers. This portion we will discuss in the next lesson, and the remaining 9 themes will also be discussed. And thank you for watching this. Have an awesome day. Please watch the next part. Hey guys, so this is the part 2 of Union Budget 2017. So we were discussing about the farmers, that we are committing to double the farmers' income by 2022
We want to improve the private consumption, like since it comes from the rural area, so it will improve the economy as well. And we are targeting entire spectrum of farming operations like credit offtake, cooperatives, Fasal Bima Yojana, soil health card, irrigation. And we were discussing ENAM, that is National Agricultural Market, and it is to be expanded from 585 APMCs from the current 250. And the state governments are to be urged to denotify perishables from APMCs, which means that APMC means Agricultural Produce Marketing Corporation, ठीक है, committee rather, not corporation. So then, so it will help eliminate the long channel of middleman, जो बीच के बिचौलिया होते हैं, जो बेसिकली फार्मर कैन डायरेक्टली सेल टू कंज्यूमर, राइट. सो उसमें से काफ़ी सारा उनका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो सीधे फार्मर को पहुंच जाएगा. देन दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एग्रो प्रोसेसिंग, विच मीन्स कि जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ठीक है. सो दैट फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फार्मर्स के पेरिशेबल आइटम की जो मतलब शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, उसकी जो MRP है वो बढ़ जाएगी. देन फाइनली अ मॉडल लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड, ठीक है. बहुत ज़्यादा इशू होता है इसमें, बिकॉज इट हैज़ टू बी डन. फॉर एग्जांपल पेप्सी को कंपनी के लेस करके एक ब्रांड होती है, अगर वो फार्मर्स से आलू खरीद रही है, सो ऑब्वियसली वन एक तरफ तो इतनी बड़ी जायंट MNC, एक तरफ बेचारा पुअर फार्मर है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एसिमेट्री ऑफ पावर एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो उसको प्रोवाइड करने के लिए इस लॉ के ऊपर प्रपोज किया गया मॉडल लॉ. देन दे आर फोकसिंग ऑन डेयरी एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एडिशनल इनकम. उससे क्या होता है, गाय भैंस पाल लिया आपने, जो थोड़ा बहुत कचरा था उनको पेड़ पौधों का वो खिला दिया, सो उससे फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको, आप समझ रहे हो. सो लॉट ऑफ स्टफ कैन हैपन इन दैट डायरेक्शन. डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विल बी प्रोवाइडेड इन NABARD, the corpus of 8,000 crore rupees over 3 years, so that value addition can be ensured, and like some of the milk can be replaced under the operation flood that have become obsolete by now. Finally, the budget is like very well for farmers, and the major criticism however is like there has been no direct provision to reduce the pain and problem caused by demonetization. So this is the most important thing, and it will adversely hit the farmers and agriculture supply chain. It also seeks to address this concern indirectly through the general measure of remonetizing the economy quickly and normalizing the situation. ठीक है, so this was about farmers. Then let's talk about the rural population. So budget promises to undertake a mission Antodaya. ये क्या है? So that 1 crore households can be come out of poverty and to make 50,000 ग्राम पंचायत poverty free by 2019. ठीक है, why 2019? Because महात्मा गांधी जी 1869 दैट इज 1869 में पैदा हुए थे, तो उनकी 150वीं जन्म तिथि है, ठीक है. तो 150th बर्थ एनिवर्सरी है उनकी. सो दिस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेलफेयर ओरिएंटेड कमिटमेंट कि भाई आप पुअर लोगों का ध्यान दे रहे हो. एंड फाइनली अगेन लाइक परसेप्शन करेक्शन पे काफ़ी फोकस हो रहा है, थोड़ी सी पॉलिटिकल माइलेज भी आपको मिलती है ऐसी स्कीम से. बट इट हेल्प्स द पुअर ऑल्सो इन द ओवरऑल लार्ज एक्सरसाइज, स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन पुअर्स हैव बीन अफेक्टेड अ लॉट. सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द रूरल कंजम्पशन. सो जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है इकोनॉमी के वो बढ़ जाएंगे. देन बजट सीक्स टू डेवलप अ कंपोजिट इंडेक्स फॉर poverty free gram panchayats so that they can monitor the progress from baseline. Now basically what is this composite index, it is not clear, and the important step will be about basically there is a prevailing debate over the Tendulkar levels of poverty line versus the Rangarajan view versus the World Bank data on poverty levels in India. So the major challenge is that the poverty alleviation and entitlement subsidy programs, they have been linked to poverty line, which serves as the criteria for identifying beneficiaries. ठीक है. So this has over time resulted in serious inclusion and exclusion errors. So जो आपका composite index होगा या objective होगा, and it has to be acceptable to most. This is the most important thing. Okay. Then budget seeks to develop a, जो मैंने बताया था आपको, budgetary allocation of MGNREGS has been increased from 38,500 crore to 48,000 crore. ठीक है, तो बहुत हाईएस्ट एवर ऑफ ऑल टाइम है ये. तो खास करके इससे क्या होगा कि लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ड्रॉट प्रूफिंग हो सकती है ग्राम पंचायत की, इनकम बढ़ेगी, फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्म पॉन्ड्स, कंपोजिट पिट्स, ऐसी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो. देन एलोकेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15,000 करोड़ टू 23,000 करोड़. ओके, द टारगेट क्या है इसका कि जो हाउसलेस हैं, जो 2019 तक 1 करोड़ हाउसलेस के लिए और जो कच्चा हाउस में रहते हैं उनके लिए 1 करोड़ घर बनाने हैं. ठीक है. फिर फाइनली 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है उन्होंने, बट लेकिन जो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज है उसको काफ़ी आपको सीरियसली देखना है, बिकॉज क्या है उसकी डेफिनेशन वो पता नहीं है. ठीक है.
सो उसमें बस इतना ही बोला है कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड शुड बी एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन द विलेज. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, लाइक जो है सब कुछ वहाँ से होना चाहिए. देन इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू स्कूल्स, पंचायत ऑफिस, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज, कम्युनिटी सेंटर्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो बट डेफिनेशन डज नॉट टॉक अबाउट एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और इट्स सप्लाइड टू द हाउस होल्ड यूनिट. नाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा लैक होती है. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म फॉर रिजल्ट्स एक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया जाएगा. सो दैट लाइक कंबाइनिंग द आइडिया ऑफ competitive सब फेडरलिज्म एंड इंक्रीज्ड एलोकेशन टू LSGs, that is local governments, under 14 Finance Commission. It will help strengthen the third tier. Third tier is पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लेवल बॉडीज जो होती हैं एक्सेट्रा. देन लेट्स टॉक अबाउट यूथ. सो बेसिकली उनकी तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए. जैसे एनुअल लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वो सब मेजर होना चाहिए अच्छी तरीके से. देन साइंटिफिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट होने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन क्रिएट लोकल सॉल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे ना साइंस से, कि आपके जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा योजना मैगजीन में, कुरुक्षेत्र में, कि उसने वैसा मोटर पंप बना लिया एंड ऑल दैट. वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. सो बेसिकली it needs to be seen whether the locally relevant content will be used or this will be to introduce some regressive elements into the curriculum. ये एक थोड़ा सा डिबेट है, so that has to be done. हायर एजुकेशन में बेसिकली UGC बोल रहा है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए. ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. खासकर ये हो रहा है, आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, IIMs में, IITs में गवर्नमेंट हैज़ इंटरफियर्ड समटाइम्स, तो उनकी ऑटोनॉमी थ्रेटन हो रही है. ठीक है. देन प्रोमिसेस टू लॉन्च स्वयं प्लेटफॉर्म. वो क्या है कि ऑनलाइन एक मूक की तरह होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की तरह, जिसमें 350 ऑनलाइन कोर्सेज आप पढ़ा सकते हो. सो दैट बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी रीडिंग रिसोर्सेज कैन बी डन फॉर स्टूडेंट्स वर्चुअली. अनदर मेजर रिफॉर्म विल बी टू एस्टैब्लिश अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज. तो क्या है, CBSE, नीट, AICTE, ये सब क्या करते रहते हैं, ये एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराते रहते हैं. तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगा, ये ऑल दी लाइक इट विल बी एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. इट विल कंडक्ट ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो ताकि जो बाकी CBSE, AICTE या नीट वगैरह है जो है, वो अकेडमिक्स पे फोकस कर सकें. और ऑल्सो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आपने सुना होगा 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपए का डोनेशन होता है. तो जो इलीगल कैपिटेशन फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके. ठीक है. नाउ इट ऑल्सो फोकसेज ऑन संकल्प, दैट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम. ठीक है. तो संकल्प पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है. सो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम. इसमें क्या होगा, 4,000 करोड़ की इसकी कॉस्ट है. 3.5 करोड़ यूथ्स को ये मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स आप प्रोवाइड करोगे. सो बेसिकली देयर विल बी लिंकेजेस बिटवीन स्किल एंड लाइवलीहुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल ऑल्सो इंप्लीमेंट द इनिशिएटिव्स अंडर स्किल इंडिया मिशन एंड मेक इन इंडिया. एज मैंने इकोनॉमिक सर्वे में आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, अपैरल इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यही है, इंक्लूडिंग वुमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प होगा. और जो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन है जिसमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो उसमें भी आपको यूथ स्किल्ड चाहिए. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट दैट. सो देन वी हैव पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड. ठीक है. सो इसमें है महिला शक्ति केंद्र एट ICDS आंगनवाड़ी सेंटर्स. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारी, तो आप पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करा सकते हो क्योंकि औरतें आ रही हैं जैसे, तो स्किल डेवलपमेंट करा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हो, डिजिटल लिटरेसी की बात कर सकते हो, हेल्थ की बात कर सकते हो, न्यूट्रिशन की बात कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वैक्सीनेशन, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, सब कुछ एक ही जगह पे हो जाएगा, जिसको बोलते हैं महिला शक्ति केंद्र एट ICDS आंगनवाड़ी सेंटर. नाउ एलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इट हैज़ बीन स्टेप्ड अप अलॉट. Then affordable housing has been given like infrastructure status, so associated benefits मिल जाएंगे. This will encourage investment. It will offer tax benefits to developers, and it will help to offset some of the adverse impacts of demonetization on real estate on one hand, and it will also achieve the target of providing affordable housing to all. अटेम्प्ट यहाँ पे है कि सप्लाई साइड में जो उसको एड्रेस करना चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट. ओके. सो देन वी विल टॉक अबाउट हेल्थ एंड पॉवर्टी. उसमें कालाजार और फाइलेरियासिस को 2017 तक खत्म करना है, लेप्रोसी को 2018 तक खत्म करना है, मीजल्स को 2020 तक, ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक एलिमिनेट करना है, एंड रिड्यूस IMR फ्रॉम 39 in 2014 to 28 by 2019, एंड रिड्यूस MMR फ्रॉम 167 in 2011 to 100 by 2018 to 2020. ठीक है.
So these targets are in line with the Sustainable Development Goals of 2030 and budget ने propose किया है कि these reforms will take place. So legislative reforms of existing labor laws, उनको क्या है कि simplify करना है, rationalize करना है, ताकि जो दुनिया में जो existing laws हैं उनसे कर पाएँ. किस चीज़ में चार फोकस एरिया हैं. वेजेस बढ़ानी चाहिए, कुछ मिनिमम वेज फिक्स होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर जो है लेबरर्स का वो ध्यान रखना चाहिए, और फाइनली जो वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए वो सेफ होनी चाहिए. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में क्या है कि इंडिया काफ़ी पीछे आता है. वर्ल्ड बैंक की जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग होती है तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा. देन यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी एलोकेशन बढ़ाया है, 4 लाख करोड़ के करीब है. द गोल इज टू मेकअप फॉर बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो रहा है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो. नाउ क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन एम्फोसाइज्ड अपॉन, ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें, विच हैज़ बीन स्टेप्ड बाय 25%. ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहली बार कंबाइन कर दिया रेलवे बजट और उसको, तो रेलवेज, रोड्स, वाटरवेज, सिविल एविएशन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में सिनर्जी आ सकती है, तो रियलिटी बन जाएगा फाइनली. अभी तक क्या सब अलग अलग होता रहता है. नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, क्रिएशन ऑफ सिंगल मार्केट विल ऑल्सो हेल्प्स इन लॉजिस्टिक सेक्टर, और फाइनली एक इफेक्टिव मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारी इकोनॉमी को काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना देगा. रेलवेज 4 मेन एरिया पे फोकस करेगा. उसका है सबसे पहले पैसेंजर सेफ्टी, उसके राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष क्रिएट किया गया 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 5 साल में. सो बेसिकली काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो रेलवेज़ को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि आप बेसिक तो आप रेलवेज़ देख नहीं रहे हो, आप बुलेट ट्रेन्स बनवा रहे हो, तो इसलिए ये है. दूसरा है कैपिटल एंड डेवलपमेंट वर्क्स. तीसरा है क्लीनलीनेस, उसमें क्या होगा, फोकस विल बी ऑन स्वच्छ रेल. सो 2 साल के अंदर बाय 2019 ऑल दी कोचेज ऑफ इंडियन रेलवेज विल बी फिटेड विद बायो टॉयलेट्स. देन फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिफॉर्म्स, and this has been, some of them have been proposed by Vivek Debroy committee. Then there is also metro rail policy and metro rail act. So this will be very very critical because metro is becoming basic mode of transportation. जितनी भी मेजर सिटी है, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, बैंगलोर, इनमें मेट्रो का काफ़ी बड़ा योगदान है. देन एक डिजी गाँव इनिशिएटिव विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन एजुकेशन एंड स्किल्स थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली इसका बेस क्या होगा, नेशनल फाइबर ऑप्टिक स्कीम, जिसको भारत नेट भी बोलते हैं. ठीक है, ओवरऑल अप्रोच क्या है, टारगेट एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, रूरल कंजम्पशन बढ़े. ठीक है, सो देन यू हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें क्या है, बेसिकली अबॉलिशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन बोर्ड इज अ मेजर. तो उससे क्या होगा कि 90% FDI जो था वो ऑटोमेटिक रूट से ही आएगा. ठीक है, आफ्टर द 2016 FDI पॉलिसी सर्कुलर. देन यू हैव बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अट्रैक्टिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज US फेडरल रिजर्व इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, और एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट है खासकर ट्रंप इलेक्शन के बाद. सो टुगेदर विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अ बिल एस्टैब्लिशिंग रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल वर्म. उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होगा. ठीक है, जो भी मिस एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, जो लॉस मेकिंग फर्म्स में फंसे हुए हैं, वो भी निकाल पाओगे आप. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड लेगेसी अकाउंट्स ऑफ बैंक्स. Now lending target under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना has been doubled to 2.44 lakh crore with priority being given to Dalits, tribals, backward classes, women. And ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया स्कीम में. एंड डेडिकेटेड सर्ट फिन, दैट इज साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ बीन प्रपोज्ड, एंड दिस विल बी इंपॉर्टेंट इन लाइट्स ऑफ लाइक सिक्योरिटी ब्रीच एक्सेट्रा. देन यू हैव डिजिटल इकोनॉमी, उसमें क्या है, भीम ऐप पे काफ़ी फोकस किया है, डिजिटाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया है, लॉन्चिंग मर्चेंट वर्जन ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट. सो ओवरऑल इट विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर्मलाइजेशन. पब्लिक सर्विस में जो 8th पॉइंट है उसमें लेजिस्लेटिव चेंजेस किए गए हैं, सो दैट दी कन्फिस्केट दी एसेट्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग द कंट्री. विजय माल्या के केस में काफ़ी उसके के लिए हुआ है. ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन क्रिएट इवन अ न्यू लॉ सो दैट कि आपका पूरा का पूरा जितने भी आपकी वो है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड विल बी फॉलोड, ताकि हमारी जो कैपिटल है वो इधर उधर नहीं जा पाए, पब्लिक सर्विस में भी हो. ठीक है, सो बेसिकली मार्जिनल फार्मर्स और वो सब अपने डेप्ट्स में जी रहे हैं, और ये लोग बाहर जाके मतलब दे आर लाइक गवर्नमेंट ऑफेंडर्स, तो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव फिस्कल मैनेजमेंट पे काफ़ी फोकस किया गया है, FRBM रिव्यू कमेटी है. डेट टू GDP 60% होना चाहिए बाय 2020, जिसमें कि 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, एंड 3% फिस्कल डेफिसिट फॉर नेक्स्ट 3 years, एंड डेविएशन आर अलाउड अप टू 0.5% ऑफ GDP. फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 2017-18 is 3.2% of GDP, and it is committed to achieve 3% in following year, and revenue deficit target is 1.9%. okay, सो बेसिकली बजट में पूरा एग्रीकल्चर, रूरल, एलाइड सेक्टर, सोशल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है. मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर पे फोकस किया गया है. पॉपुलिस्ट बजट उतना नहीं है, एंड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बजट काफ़ी अच्छा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव एन ऑसम डे.